this time in this ship, it will be dangerous for our life and for the ship and for all our goods. तब संत पौलुस कहते हैं कि इस जहाज की आप तैयारी मत करिए, इससे यात्रा करना अच्छा नहीं होगा, हमारे जान माल का नुकसान हो सकता है इसमें यात्रा करने से। So there were 276 people. तो 276 लोग उसमें थे। St. Paul said, don't travel today. उन्होंने कहा आज के दिन इस जहाज पर यात्रा नहीं करना है, This is dangerous to travel. इस पर यात्रा करना खतरे का काम होगा। But they never listened to him. लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी। You see, among the captain and the other people, there is one man who is a man of God, and he got a vision that this travel is dangerous. तो उस कप्तान और जो यात्री है उस जहाज के, उन सबों के बीच एक ईश्वर का बंदा ऐसा था जिसको एक ऐसे दर्शन प्राप्त हुआ जिससे मालूम पड़ा कि इस जहाज में यात्रा करने से खतरा हो सकता है। I read from verse 10. St. Paul gave this warning, friends, I see this voyage will be dangerous and that we will run considerable risk, losing not only the cargo and the ship, but also our lives as well. सज्जनों, मुझे लग रहा है कि यह यात्रा संकटमय होगी, हमें न केवल माल और जहाज की हानि उठानी पड़ेगी बल्कि अपने प्राणों की भी। So there is a man of God who can save. If you and I are listening to God, we can save lots of people from satanic attacks and destruction and all kind of evil that may happen. तो ईश्वर के जो बंदे होते हैं उनकी जब हम बात सुनते हैं तब हम जो है बहुत सारे शैतानिक आक्रमणों से, बहुत नुकसानों से, वो झेलने से हम बच सकते हैं। But what happened is that they never listened to St. Paul. लेकिन क्या हुआ, उन्होंने संत पौलुस की कोई बात नहीं सुनी। What happens to us also the same. When the Lord gives us a warning, if we doesn't listen to, we will fall into some kind of trouble afterwards. अगर ईश्वर हमें किसी प्रकार की कोई चेतावनी दे रहे हैं और हम उसकी बात नहीं सुनते हैं तो आगे चलकर हमें कोई ना कोई मुसीबत में हम जरूर पड़ जाएंगे। One day, one of our priests, I will not name the name of the priest, but I will say the incident. One of our priests was doing a retreat in our retreat center. तो मैं किसी का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन हमारे एक पुरोहित थे, एक ध्यान साधना केंद्र में ध्यान चला रहे थे। The director of the retreat center said to that father, today you should not make travel. तो जो ध्यान साधना केंद्र के निर्देशक पुरोहित है, संचालक पुरोहित, उन्होंने कहा कि फादर जी आज आपको यात्रा नहीं करना चाहिए। Father had a jubilee celebration in a remote part of India. और फादर जी जो है वो ऐसे 50वीं वर्षगांठ वगैरह मनाना था उनको, और वो भारत के एक बहुत ही दूर दराज इलाके में था। In his own family, the only sister who is celebrating her golden jubilee, so he said, by somehow I have to go for the jubilee. तो कहा मेरी ये बहन है और वो धर्म बहन है और वो 50वीं वर्षगांठ बना रही है, तो मुझे किसी भी तरह जुबली के उस समारोह के लिए कैसे भी करके पहुंचना है। But the director said, don't go, father. लेकिन जो संचालक पुरोहित है, निर्देशक पुरोहित, उन्होंने कहा कि फादर जी मत जाइए। Father said, I will go. लेकिन फादर ने कहा नहीं, मैं जाऊंगा। Then father said, the director said, let us ask our prayer team, prayer group, let them pray over and tell whether it is the will of God to go or not. तब जो डायरेक्टर फादर है उन्होंने इस प्रकार कहा कि हम अपनी प्रार्थना गुट को कहेंगे कि आप प्रार्थना करिए और ईश्वर की इच्छा इसमें है या नहीं है, हम उनसे पूछेंगे। So in that prayer group, this father came and said, please pray for the two intentions and I will give you two numbers, select one number. And if among the fathers, they said, if the number one they select,
you should not go. If they select number 2, you can go. So which the community does not know, but the fathers know. In the prayer group, they gave these 2 numbers and said, pray and select 1 number. तब जो पुरोहित निर्देशक पुरोहित है उन्होंने कहा कि अपनी जो प्रार्थना गुट है उसको ऐसे बताया कि 2 ऐसी हमारी दरख्वास्त है, प्रार्थना है, तो आपको उस 2 याचनाओं के लिए प्रार्थना करना है। 1 और 2 ऐसे 2 अंक बता दिए। अगर उनको खुद को मालूम था कि अगर पुरोहित जी को नहीं जाना है तो 1 क्रमांक है और जाना है तो क्रमांक 2 है, तो ऐसे 2 अंक उन्होंने लोगों को, जो प्रार्थना गुट वाले, उनको चुनने को कहा। इस 2 में से 1 अंक चुनकर बताइए प्रार्थना करने के बाद। Prayer group prayed and selected that you should not go. Number 1, that you should not go. तो प्रार्थना जो गुट है उन्होंने प्रार्थना करने के बाद 1 नंबर का क्रमांक यानी नहीं जाना है उसको चुन लिया। Even after that he went. उसके बावजूद वो पुरोहित जी चले गए। So what happened is that he got a bus to that station. और फिर उन्होंने एक बस पकड़ लिया स्टेशन जाने के लिए। He that would go to that destination. Very happily he entered into the bus. बहुत खुशी के साथ वो बस में उन्होंने प्रवेश पाया कि मैं ठीक से वहां पर पहुंच जाऊंगा। It's a 12 hours journey, 12-14 hours journey is there. 12 से 14 घंटे का यात्रा था उस जगह तक। So what happened? The father, after taking the ticket, he entered into the bus and he started just sleeping. Bus is going, he's sleeping. और फिर पुरोहित जो है उन्होंने टिकट ले लिया, बस में सवार हो गए और बस चालू हो गई और वो सो गए। After 14 hours he woke up. 14 घंटों के बाद वो जाग उठे। He thought it is already reached the destination. उन्हें ऐसा लगा कि वो तो जो गंतव्य स्थान है वहां पर पहुंच गए हैं। But it was ulta direction the bus went. लेकिन बस जो है वो उल्टा अलग ही दिशा में चली गई थी। He was very angry with that conductor and driver. और जो बस का कंडक्टर और चालक है उस पर वो बहुत गुस्साए। Then the conductor said there was only 1 ticket to that direction, so we can't make it out. So we changed the ticket. We changed the direction of the bus to the other direction. There were a lot of people, they were to other directions. So we changed. You were sleeping, you could not hear what we announced. So what's the problem? We can't do anything. Get out. तो उन्होंने कहा कि उस दिशा में जाने के लिए आपको जहां पे जाना था आप अकेले ने टिकट खरीदी थी और बाकी कोई भी यात्री हमको नहीं मिला। बाकी सभी लोग दूसरे तरफ जाना चाह रहे थे तो हमने बस को दूसरे दिशा में घुमा दिया। हमने तो, आप तो सोए हुए थे, हमने तो गाड़ी में उद्घोषणा भी की, अनाउंसमेंट भी किया और बताया भी था, लेकिन आप सोए हुए थे, आप तो सुने ही नहीं। What happened? The priest got down there, he had to come back, and then 1 day passed when he reached the destination. That the jubilee, everything is over. No one was there. तो जो पुरोहित है फिर वहां से उनको उतरना पड़ा, फिर दोबारा वापस आना पड़ा और फिर जब तक वो अपने गांव जहां पे जाना था वहां पहुंचे तब तक जो जुबिली की समारोह है वो पूरी समाप्त हो गई थी। So when there is a divine message, we have to listen to and do, then we can avoid lot of troubles in our life. जब एक दैविक संदेश होता है तब हमको उस चीज को टाल देना चाहिए, उससे बहुत सारी मुसीबतें टल जाती हैं। But you know, in this journey, they did not listen to St. Paul's warning, but they listened to the captain, what he said. Captain, this is a good time to go. Now it is cold season coming, we cannot stay here. Now we have to go. So the centurion listened to the captain, they travel. और जो लोग हैं वहां पे उन्होंने पौलुस की न सुनते हुए जो कप्तान है, शतपति है, उसकी बात सुनी और उसके साथ उन्होंने जहाज पर रवाना हो गए वो सभी के सभी। After a few hours of travel, there was a very great wind, strong, headstrong wind called the northeaster wind, and they were out in the open sea without seeing sun or moon for 14 days and 14 nights. और फिर जब वो यात्रा उन्होंने अनसुना करते हुए उन्होंने यात्रा शुरू की, उसके बाद उनको वहां पर बीच समुद्र में तूफान मिला और तूफान मिलने के बाद 14 रातों तक और 14 दिनों तक उन्होंने सूरज भी नहीं देखा। इतना बुरी तरह से वो तूफान में फंस गए थे। They were all struck, and the ship got struck and it broke.
और जो तूफान में जो जहाज है उस पर बिजली पड़ी और उससे जो जहाज है वो टूट गई। But St. Paul said, I read, do not be afraid, Paul. You are destined to appear before Caesar, and God grants you and the safety of all who are sailing with you. और इस प्रकार संत पौलुस को संदेश मिला कि आप बिल्कुल घबराए नहीं। आप जो इसके सामने सीजर के सामने आप जो प्रस्तुत होने वाले हैं, आपको उसका मौका जरूर मिलेगा। Because of you, God gives safety to 276 people also. और आपके वजह से ये 276 लोग जो इस 276 लोग प्राणी जो इस जहाज पर हैं, वो भी सभी लोग बच जाएंगे। So among us, if there is a one man of God who listens to God and leads a life according to the plan of God, you or I can save hundreds of people from the power of Satan. अगर हमारे बीच कोई ऐसा ईश्वर का बंदा होता है, ईश्वर के व्यक्ति होता है, तो उस व्यक्ति की वजह से यानी अगर हम रहेंगे, तो हमारे वजह से बहुत सारे हज़ारों, 100 लोगों को हम लोग सैकड़ों लोगों को बचा सकते हैं। That's why St. Paul said, not even a single hair of your head shall be lost. Everyone will be safe. And they were really safe. और इसीलिए संत पौलुस कहते हैं कि आपका बाल की बांका भी नहीं होगा और आपका सब लोगों का कल्याण होगा, आप बच जाएंगे और वैसा ही होता है। Times of trouble comes into our life too. In times of trouble, we have to take the gift of faith in the word of God and go forward. हमारे जीवन में जब कोई भी संकट या मुसीबत आता है, तब जो विश्वास का वरदान हमें मिला हुआ है, उसको हमें ले लेना चाहिए और हमें जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। If God has called you, He will reach you to the destination. अगर प्रभु ने आपको बुलावा दिया है, तो वो आपको आपके गंतव्य स्थान तक जरूर पहुंचाएंगे। Whatever may be the difficulties in the life may come, जो भी जिंदगी में मुसीबतें या दिक्कतें क्यों ना आए, the Lord will reach you to the destination. आपको प्रभु अपने गंतव्य स्थान तक जरूर पहुंचाएंगे। Here they started in a ship, their travel. और उन्होंने एक जहाज में अपनी यात्रा शुरू की। But you know, the ship broke. आप जानते हैं कि जो जहाज है वो टूट गया था। So they saved by a piece of wood, the broken pieces of the ship, a piece of wood in which they sat and escaped, all 276 people. और जो 276 लोग जो थे वहां पे सभी के सभी लोग, उस जो जहाज टूट गई थी उसमें से एक लकड़ी का टुकड़ा था, उस लकड़ी के टुकड़े पे सवार होकर पूरे 276 लोग बच गए। This is, if you, God has called you by any means, He will reach you to the destination. अगर प्रभु ने आपको बुलाया है तो आपको आपके गंतव्य स्थान तक प्रभु कैसे भी करके पहुंचाएंगे। For example, David was the anointed of God in the Old Testament. पुराने विधान में उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि जो दाऊद है वो ईश्वर का अभिषिक्त व्यक्ति होता है। Read it in the First Samuel chapter 16. पहली सामुएल के ग्रंथ अध्याय 16 में हम ये पढ़ते हैं। But after getting anointed as a king, so David had lot of problems in life. और दाऊद को जब अभिषेक मिल गया था राजा के तौर पर, उसके बाद उसके जीवन में कोई समस्या नहीं थी। ना समस्या हुआ, बहुत समस्या. He had lot of troubles in the life. उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हुई। 10 times Saul wanted to kill him. 10 बार जो राजा साउल है वो उनकी हत्या करना चाहता था। 2 times his enemy, the Philistines, wanted to kill him. और 2 बार उसके जो दुश्मन फिलिस्ती हैं वो उसको मार गिराना चाहते थे। But all the time, the Lord saved him. लेकिन सभी समयों पर प्रभु ने उन्हें बचाया।
So if the Lord has anointed you, he will reach you to the destination. अगर प्रभु ने आपको अभिषेक दिया है तो वो आपको आपके गंतव्य स्थान तक जरूर पहुंचाएंगे। Whatever may be the troubles that come in the life, कैसे भी मुसीबत या दिक्कतें क्यों ना आए आपके जीवन में, provided you and I stand with God and remain with him. और बशर्ते कि आप प्रभु के साथ बने रहते हैं। It doesn't mean that after becoming a Christian, you will be free from all troubles. ऐसा इसका मतलब नहीं है कि एक बार आप ईसाई बन गए तो आपको सभी प्रकार की दिक्कतों से या मुसीबतों से छुटकारा मिल जाएगा। But one guarantee is there, the Lord will raise you up from all the difficulties that come to you. लेकिन सिर्फ एक बात की यकीन है कि जो भी मुसीबत या दुख तकलीफ या दिक्कतें आए, प्रभु आपको उसमें से ऊपर उठा लेंगे। There will be one way out from that trouble. आप एक न एक तरीके से उस मुसीबत से बाहर जरूर आ जाएंगे। You may have to wait for some time. कभी कभी आप ये जान पाएंगे कि कैसे आपको इंतजार करना है उस समय के लिए। Maybe you thought that it is the end. I have no hope. It will be the end of my life. कभी कभी ऐसा आप लोग सोच भी सकते हैं कि बस मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, ये मेरी जिंदगी का आखिरी पल है। Nothing will harass you. कोई भी बात आपको परेशान नहीं कर पाएगा। In the 2 Corinthians chapter 1, कोरिन्थियों के दूसरे पत्र अध्याय 1, St. Paul speaks about his trouble. संत पौलुस अपने समस्याओं को, अपने मुसीबतों के बारे में बोलते हैं। Verse 4 to 11. और वचन संख्या 4 से लेकर 11 तक। Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the merciful Father, and the God who gives every possible encouragement. He supports us in every hardship so that we are able to come to the support of others in every hardship of theirs because of the encouragement that we ourselves receive from God. For just as sufferings of Christ overflow into our lives, so too does the encouragement we receive through Christ. So if we had hardships to undergo, this will contribute to your encouragement. And I read verse 8. So in the hardships we underwent in Asia, we want you to be quite certain, brothers, that we were under extraordinary pressure, beyond our power of endurance, so that we gave up all hope even of surviving. In fact, we were carrying the sentence of death within ourselves, so that we should be forced to trust not in ourselves, but in God who raises the dead. He did save us from such a death and will save us too. You see how the life of St. Paul, how his hardships in the life. You just note and you just read by yourself. तो अब हम हिंदी में उसको पढ़ेंगे। वचन संख्या 3 से है। धन्य है ईश्वर हमारे प्रभु ईसा मसीह का पिता, परम दयालु पिता और हर प्रकार की सांत्वना का ईश्वर। वह सारी दुख तकलीफ में हमको सांत्वना देता है, जिससे ईश्वर की ओर से हमें जो सांत्वना मिलती है, उसके द्वारा हम दूसरों को भी उनकी हर प्रकार की तकलीफ में सांत्वना देने के लिए समर्थ हो जाए। क्योंकि जिस प्रकार हम प्रचुर मात्रा में मसीह के दुख भोग के सहभागी हैं, उसी प्रकार मसीह द्वारा हमको प्रचुर मात्रा में सांत्वना भी मिलती है। यदि हमें दुख भोगना पड़ता है तो आप लोगों की सांत्वना और मुक्ति के लिए यदि हमें सांत्वना मिलती है तो इसलिए कि हम आप लोगों को सांत्वना दे सके। आगे वचन संख्या 8 में इस प्रकार लिखा है, भाइयों, हम आप लोगों से यह नहीं छिपाना चाहते हैं कि एशिया में जो कष्ट हमें सहना पड़ा वह बहुत ही भारी और हमारी सहन शक्ति के परे था।
यहाँ तक कि हमने जीवित रहने की आशा भी छोड़ दी थी और हमें यह समझ रहे थे कि हमें प्राण दंड मिल चुका है। यह इसलिए हुआ कि हम अपने पर नहीं बल्कि ईश्वर पर भरोसा रखें, जो मृतकों को पुनर्जीवित करता है। उसने हमें इस महान संकट से बचाया और वह ऐसा ही करता रहेगा। उस पर हमारी यह आशा आधारित है कि वह भविष्य में भी हमें बचाएगा। So St. Paul, who had the revelation of God, who even ascended into the third heaven, who had the 5 wounds of Jesus, who had the revelation about the Holy Spirit and the charisms. This man says, we are in such a pressure, no hope of surviving. और संत पौलुस एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको प्रभु का दर्शन प्राप्त हुआ था। इतना ही नहीं, वो तो तीसरे आसमान या स्वर्ग तक पहुंचकर वापस आए थे और फिर उनको 5 घाव भी थे प्रभु यीशु के उनके शरीर में। वो पवित्र आत्मा के बारे में उनको बहुत सारा ज्ञान था। ऐसा एक व्यक्ति कहता है कि हम इतनी दबाव में थे कि हमें लगा मानो हमें मृत्युदंड सुना दिया गया है, हमने इतना सहन किया है। But he did not get to despair and never got destroyed. वो बिल्कुल हताश कभी नहीं हुए और ना ही उनको कभी उनकी कोई बर्बादी हुई। He knew that if the Lord has called you, he will reach you to a destination. क्योंकि वो ये जानते थे कि अगर प्रभु ने हमें बुलाया है तो हम निश्चित तौर पर गंतव्य जरूर पहुंचेंगे। But life may be hard, but it will not be broken. भले ही जिंदगी बहुत कठिन हो लेकिन हम टूट नहीं जाएंगे। And a man came to cut my hair. He said, Father, there is no advance in my family, in my wealth. I'm struggling, he said. एक भाई जो है वो मेरे बाल काटने के लिए आए थे। उस भाई ने ऐसे कहा कि पुरोहित जी, मेरे परिवार में कोई प्रगति नहीं हो रही है, ना परिवार के जनों में कोई धन संपत्ति, किसी चीज का कोई प्रगति नहीं हो रहा है। I took this chance and talked to him about Jesus. तब मैंने यही मौका लिया और प्रभु ईसा मसीह के बारे में उन्हें बताया। He is a non-Christian, and I said to him, if you believe in God, if you believe in Jesus Christ, you will not be broken into despair. तब मैंने उसे कहा कि भले आप अक्रिस्ती हो लेकिन अगर आप प्रभु यीशु ईसा मसीह में विश्वास करते हैं तो आप कभी भी टूटकर बिखरेंगे नहीं। And I said to him, even if there will be financial struggle, you will never get poverty in your life. भले ही आर्थिक रूप से आपको संघर्ष करना पड़े लेकिन आप कभी गरीबी का सामना नहीं करेंगे। And he said, exactly same, Father. I had a lot of struggle, but never experienced poverty. I never experienced, he said. उसे कहा, बिल्कुल ठीक बताया फादर जी आपने, मेरे जीवन में बहुत आर्थिक संघर्ष है लेकिन मैंने कभी गरीबी का अनुभव नहीं किया। Never deprived of my daily food, Father. कभी भी मुझे दैनंदिन आहार से मुझे वंचित नहीं रखा गया। Never had been poor. Provided God is. मैं कभी भी इतना गरीब नहीं बना। So there is no guarantee that you will be free from all trouble, but there is a guarantee that you will be helped in all your troubles. ऐसी कोई यकीनता नहीं है कि आपको सभी मुसीबतों से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन आपको बिल्कुल यानी कोई मुसीबत ही नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन जब मुसीबत आएगी तो प्रभु आपका साथ देंगे, उसमें से आपको बाहर निकालेंगे, इस बात की यकीनता है। For this we need the key of the word of God. और इसके लिए हमें कुंजी या चाबी चाहिए और वो है ईश्वर की वचन की कुंजी। So it is said in 1 Corinthians chapter maybe 10, let me see, chapter 10, 1 Corinthians chapter 10, verse 12 and 13. पहले कुरिन्थियों के नाम लिखे पत्र अध्याय 10 वचन संख्या 12 और 13 में इस प्रकार लिखा हुआ है। Everyone, no matter how firmly he thinks he is standing, must be careful he does not fall. None of the trials, this is a key word, none of the trials which have come upon you is more than a human being can stand. You can
trust that God will not let you be put to the test beyond your strength, but with every trial will also provide a way out by enabling you to put up with it. Did you get it? कोरिन्थियों के नाम लिखे पहला पत्र अध्याय 10 वचन संख्या 12-13। इसलिए जो ये समझता है कि मैं दृढ़ हूं वो सावधान रहे, कहीं ऐसा न हो कि वो विचलित हो जाए। आप लोगों को अब तक ऐसा प्रलोभन नहीं दिया गया है जो मनुष्य की शक्ति से परे हो। ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है, वह आपको ऐसे प्रलोभन में पड़ने नहीं देगा जो आपकी शक्ति से परे हो। यह प्रलोभन के समय आपको उससे निकलने का मार्ग दिखाएगा और इस प्रकार आप उसमें दृढ़ बने रह सकेंगे। So he will show you a way out in the life. आपको जीवन में उस मुसीबत से बाहर निकलने का मार्ग दिखाएंगे प्रभु, That's what is enough for us. और वो हमारे लिए काफी है। Troubles may come, difficulty may come, but we have a way out of that. We come out of that. We grow through trials and tribulations. दुख तकलीफ या मुसीबत होगी, लेकिन उससे बाहर निकलने का रास्ता भी प्रभु बताएंगे और हम उसके द्वारा उसकी मदद से हम बाहर आ सकेंगे। We will be strong. We will be growing. Nobody can block our growth if God has called us. अगर प्रभु ने हमें बुलाया है तो हमारी जो बढ़त है उसको कोई भी रोक नहीं पाएगा। भले दुख तकलीफ हो, मुसीबत हो, लेकिन हमें थोड़ा संघर्ष का एहसास करना पड़ेगा, लेकिन उसके हम आगे बढ़ते जाएंगे। Jesus said, not even one hair of your head will fall without the knowledge of my Father. और प्रभु ईसा कहते हैं, मेरे पिता के ज्ञान के बगैर आपके सिर से एक बाल भी नहीं गिर सकता है। Even a sparrow falling, my Father knows, he said. और वो कहते हैं चिड़िया अगर पेड़ से गिरती है तो वो भी मेरे पिता को पता है। So we need a strong, very strong faith life in troubles. और मुसीबत के वक्त हमें एक बहुत ही दृढ़ विश्वास का ऐसे उस समय हमें रहना है। Psalm 25 verse 3 says, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 25 वचन संख्या 3 कहता है, calling to you, none will be ever put to shame, but shame is theirs who groundlessly break faith. अध्याय 25 स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 25 वचन संख्या 3, जो तुझ पर भरोसा रखते हैं वे कभी निराश नहीं होते, निराश वे होते हैं जो अकारण तुझे त्यागते हैं। Anyone who trusts in the Lord and is following him will have no chance to get despair. He will not be put to shame. और जो सभी प्रभु पर भरोसा रखते हैं, उनका नाम पुकारते हैं, वे कभी भी निराश भी नहीं होंगे और कभी हताश भी नहीं होंगे। In my life, I had a struggle for 2 years. 2 साल तक मुझे एक बात से संघर्ष करना पड़ा। Was terribly from all sides there was a pressure on me. सभी तरफ से मुझ पर बड़ा दबाव बनाया गया। I thought of going away from here. मुझे ऐसे लगा कि यहाँ से मुझे निकल जाना चाहिए। I thought of stop this ministry and go for some place to rest and sleep and do your personal life. Why you are struggling like this? और मैं इतना संघर्ष कर रहा था उस दबाव के भीतर, मुझे ऐसे लगा ये सब छोड़ छाड़ कर मुझे कहीं ऐसे आराम करने के लिए किसी और जगह पे चली जाना चाहिए। Such was the pressure in life. इतना जिंदगी में दबाव बना हुआ था। I got sick even. और हम इससे मतलब निकलना चाह रहे थे। I was sick also. मैं बीमार भी था। And I asked him, how long do you permit this? मैंने प्रभु से पूछा कि आप और कितने देर तक इस बात की अनुमति देंगे? He said, my time, I will lift it up, not your time. तब प्रभु ने जवाब दिया, मेरे समय पर मैं इस समस्या से तुम्हें बाहर निकालूंगा, तुम्हारा समय नहीं, मेरा समय। And he said, if you don't undergo this trial now, you will have to undergo after your death in the purgatory.
तो कहा कि अगर आपको इस समय इस परीक्षा से गुजरनी अगर नहीं गुजरेंगे तो आपको मृत्यु के पश्चात आपको शुद्धिकरण स्थल में परीक्षा से गुजरना होगा। Then you have to do it alone without तब help of anybody. तब किसी के भी मदद नहीं होगा, तुम्हें अकेला ही करना पड़ेगा। I stopped complaining. मैंने तब शिकायत करना बंद कर दिया And after the time allotted, he opened the way. और जो निश्चित समय था उसके बाद प्रभु ने मार्ग खोल दिए। Today I went for preaching for the disabled children. और जो दुर्बल बच्चे हैं मैं उनके पास यहाँ प्रवचन करने के लिए आज गया था। They were differently abled. वो असल में कुछ अलग तरीके से वो काबिल हैं। Not like us, they can't walk, they can't do some physical work, or the physical body is disabled. उनका शारीरिक शरीर जो है वो दुर्बल है, यानी वो किसी तरह से अपंग जैसे हैं। I noticed that when I told them, you know that you have a body, you have a soul, and you are a spirit, and you live in a body, they were so happy to listen to that. और जब मैंने उन्हें बताया कि आपके पास एक शरीर है, एक मन है, एक आत्मा है, रूह है और आप जो है शरीर में और आत्मा में और रूह में भी जीते हैं, ये बात सुनकर वो बहुत खुश हो गए। I just quoted 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. और मैंने उनको पहले थिस्सलुनीकियों के पत्र अध्याय 5 वचन संख्या 23 मैंने उनको बताया। It is written there, you are a spirit, you have a soul, you live in a body. और मैंने उनको बताया है कि आप एक रूह है, आपको एक आत्मा है और एक शरीर में जीते हैं। In Hindi, it is written man, sharir, or atma, but actually it is spirit, soul, and body. हिंदी की बाइबल में इस प्रकार लिखा है कि मन, शरीर और आत्मा, लेकिन असल में वो रूह, आत्मा और शरीर है। हिंदी में पढ़िए प्रथम 1 Thessalonians chapter 5:23. शांति का ईश्वर आप लोगों को पूर्ण रूप से पवित्र करे, आप लोगों का मन, आत्मा तथा शरीर हमारे प्रभु ईसा मसीह के दिन निर्दोष पाए जाए। So ईश्वर it is written man, but actually it is soul and spirit and body. तो असल में यहाँ पे लिखने के समय इस प्रकार अनुवाद करते समय मन, आत्मा और तथा शरीर लिखा गया है, लेकिन असल में जो शब्द का अर्थ होता है वो रूह, आत्मा और शरीर है। In Hindi, there is no word for spirit, so they call mind as a spirit. There is no word translated into about spirit in Hindi. There is no translation. So atma, soul. That what about the spirit or life? You say there is no word in Hindi. असल में रूह जो है वो उर्दू शब्द है और हिंदी में रूह के लिए कोई शब्द नहीं है, तो इस जगह पर इसलिए उन्होंने मन ऐसा शब्द का इस्तेमाल किया गया है। So ruh means only wind. Doesn't mean spirit. Ruh means wind, not spirit, whatever maybe. So your body, soul, and spirit. You are a spirit, you have a soul, you live in a body. तो आपको एक आत्मा है, आप शरीर में जीते हैं और आपकी उर्दू वाली शब्द रूह का हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, मन हिंदी में है। So I said, when your physical body is disabled, nothing to worry if your soul and spirit are okay. अगर आपका शरीर शारीरिक रूप से आप अगर दुर्बल हैं तब भी चलेगा, लेकिन अगर आपका मन और आत्मा या रूह या आत्मा सही है तो कोई बात नहीं। The same way about me and about every one of us. If your soul and spirit is perfect, nothing to worry about your body. It will be perfect because a soul and spirit will always direct the body. Body will be always subject to them. So your body will be all right. Even if your body is physically weak or sick, nothing to worry.
if your soul and the spirit is all right, you get a new body. तो अगर आपके शरीर में कोई भी खराबी है, कोई बीमारी है, कोई दुख तकलीफ है, तो कोई बात नहीं। अगर आपका रूह या आत्मा और आपका मन जो है वो स्वस्थ है, वो अच्छा है, तो फिर ये सब बातों की बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं, ये अपने आप ही परिपूर्ण बन जाएगा। Most of the time, our body pressing the soul and we get pressed by the body. और अक्सर ऐसा होता है, हमारा शरीर जो है वो हमारे आत्मा के ऊपर एक मन के ऊपर एक दबाव बनाता है और वो दब जाता है। We want to know that, you take book of wisdom, प्रज्ञा ग्रंथ को हम ले लें, chapter 9, प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 9, वचन 15. वचन संख्या 15। Can you read? The perishable body presses down the soul. The tent of clay weighs down the mind with many cares. You get 9, what is the word? 15, you see in Hindi mein, which line? 9, chapter 9, verse 15. Chapter 9, verse 3. उपदेशक, क्योंकि नश्वर शरीर आत्मा के लिए भार स्वरूप है और मिट्टी की यह काया मन की विचार शक्ति खटा देती है. So what happens is, always the body press the soul. And this is a tent of clay, which is made with the clay, with the cares and worries always pressing the soul. तो हमारा जो शरीर है वो दबाता है हमारे आत्मा को, हमारे मन की बातों को। Look at the 3 temptations: lust of the eyes, lust of the body, and pride. All comes in the body. और फिर जो आंखों की लोभ है, शरीर का लोभ है, ये सब शरीर के साथ में ही आता है। They will pressing the soul. और ये सब हमारी आत्माओं को दबाता है। If the spirit is controlling the body, you are a saint. अगर आपका शरीर के ऊपर नियंत्रण आपकी आत्मा का या रूह का है, तो इसका मतलब है कि आप संत हैं। You don't worry about your body being crushed or destroyed or beaten or persecuted. Nothing will be worried. तो आपको आपके शरीर के साथ कोई मारे, पीटे, कूटे, कुछ भी करे, तो आप उससे परेशान नहीं होंगे। Because the Bible says you can get a fresh body. क्योंकि पवित्र ग्रंथ कहता है कि आपको एक ताजा शरीर मिल जाएगा। 1 Corinthians chapter 15, if you read, it is written that you will get a new body. और पहले कुरिन्थियों के नाम लिखे अध्याय 15 में हम पढ़ते हैं कि आपको एक नया शरीर मिल जाएगा। When you die, your earthly body will be damaged and gone. You will get a spiritual body. तो आपकी जो ये भौतिक शरीर है, अगर ये नष्ट भी हो जाएगा, तो आपको एक आध्यात्मिक शरीर मिल जाएगा। Verse 39 onwards, you can read. You don't need to write down. 39 onwards to 53. 49 से लेकर 53 तक हम ये पढ़ते हैं। So there is written that you will get a new body. और यहाँ पे लिखा है कि आपको एक नई देह या शरीर प्राप्त होगी। Provided your soul and your spirit is perfect. और बशर्ते कि आपका जो आत्मा है, आपका जो मन या आपकी रूह है, वो सही रहती है। How can you keep the mind and soul perfect? By a connection with the God who is a spirit.
मन और आत्मा जो है उसको आप परिपूर्ण कैसे बना के रख सकते हैं? आप ईश्वर के साथ एक संबंध कायम करते हुए, उनके साथ एक रिश्ता कायम करके कर सकते हैं। Ishwar, God is a spirit. और प्रभु जो है वो आत्मा है, वो आध्यात्म से जुड़े हैं। So he will give a new body for our spirit. तो वो एक नया शरीर, एक नई आत्मा प्रदान करते हैं। The purpose of our creation is to reach the destination which is heaven. और फिर हमारा जो उद्देश्य है वो स्वर्ग पहुंचना है। The earth is only a temporary house, a picnic और center. ये जो पृथ्वी है बस सहल सपाटे जैसा एक कुछ समय के लिए क्षणिक है। After picnic, we come back to our home. सहल सपाटा करने के बाद हम घर लौट कर आते हैं। The same way, after a short period of this earth, we get a transfer to heaven. तो इस धरती पर कुछ समय बिताने के बाद हमको यहाँ से हमारी तबादला हो जाता है और हमें स्वर्ग जाना है। So, if we can't reach heaven, that is the greatest sorrow of a person. अगर हम स्वर्ग नहीं पहुंच पाए तो ये एक इंसान के जीवन का सबसे बड़ा दुख का बात होगा। We cannot reach heaven, that is a terrible loss for us. अगर हम स्वर्ग नहीं पहुंच पाए तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा हमारा। And Jesus is the only way. He said, follow me, I will reach you to heaven. और प्रभु ईसा मसीह एकमात्र मार्ग है जिससे हम स्वर्ग के लिए जा सकते हैं। He said, I came down from heaven and I go to heaven. I am the way, I am the truth, I am the life. Anyone who follows me will never live in darkness in hell. और प्रभु ईसा कहते हैं मैं स्वर्ग से उतर कर आया हूँ, मैं वहां स्वर्ग में वापस जाऊंगा, मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही जीवन हूँ, मैं ही सत्य हूँ। और जो मेरा अनुसरण करता है वो कभी अंधकार में नहीं रहता, यानी वो कभी नरक में नहीं जाएगा। So he knows how to take us to heaven. We just listen to his word and follow his words and directions. That's enough. तो हमें जो है बस उनके निर्देशों का पालन करना है प्रभु यीशु के, क्योंकि प्रभु यीशु ये जानते हैं कि हमें स्वर्ग वो कैसे ले जाएंगे। How do you operate a computer? By following the directions that is given to you. हम एक कंप्यूटर या गणना यंत्र जो है उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं कि उसमें जो भी निर्देश दिए हैं उसका पालन करते हुए। Call it manual or operating book or manual. तो उसको मैनुअल अंग्रेजी में कहा जाता है, यानी उसको उपयोग कैसे करें उसके बारे में एक वहां पत्र दिया होता है। In this mobile, how to operate? There's a manual given to you. तो मोबाइल का यंत्र कैसे हम भ्रमण ध्वनि यंत्र कैसे इस्तेमाल करें इसके लिए भी एक मैनुअल या पत्र दिया गया है। Just to follow the manual, you can get the best result. तो अगर हम उस मैनुअल को हम उसके इस्तेमाल करेंगे, उसके अनुसार चलेंगे तो हमें सबसे बेहतरीन उसका इस्तेमाल करने को मिलेगा। I tell you an example. Many years ago, one of our priests bought a video camera. तो एक उदाहरण देता हूँ, बहुत साल पहले हमारे एक पुरोहित ने एक वीडियो कैमरा खरीदा। Now the video camera is a big one at that time, and it is very costly. उस जमाने का था तो बहुत ही महंगा भी था और बहुत बड़ा था। There's a lens, a small bulb inside. और उसके भीतर जो है वो लेंस नामक एक चीज होता है और उसमें एक छोटा सा बल्ब जैसा होता है। It is said that you should not touch with your naked hand. If you want to take that bulb, you have to put a cotton and take, because in your naked hands there will be some water. If that touches the bulb, it will blast. तो फिर वो जो बल्ब भीतर होता था लेंस के भीतर, उसको छूने के लिए आप अपने नग्न हाथों से नहीं उसे छू सकते हैं। आपको कपास लेनी होगी, कपास लेकर आप उसके ऊपर से रखकर उसको ढककर फिर ही छू सकते हैं, क्योंकि हमारे हाथों में थोड़ी नमी होती है और नमी या पानी उस बल्ब पे लगने से वो फूट जाता है। Father did not read the direction. He just opened the camera and took the bulb with his hand. और पुरोहित जी जो है उन्होंने निर्देश को पढ़ा नहीं,
और निर्देश पत्र को नहीं पढ़ते हुए उन्होंने सीधा उसको कैमरा को खोला और वो लेंस को अपने हाथों से उन्होंने छू लिया Immediately it blasted, it broke away. और तुरंत ही वो फट गया और फूट गया It cost 10,000 rupees for that bulb. और वो छोटा सा बल्ब नामक जो चीज थी उसका 10,000 रुपए कीमत था। Father was very upset. He went to the shop and said, "What happened?" Father, it's written that you touched it with your naked hands. You touched, that's why. तब पुरोहित जी बड़े गुस्साए और वो उस दुकान पर चले गए, बोले ये क्या दे दिया और ये कैसा ऐसा हो गया। तब उस दुकानदार ने बताया आपको अपने नग्न हाथों से इसे छूना ही नहीं था, आपको निर्देश पत्र पढ़ लेना चाहिए था, कपास के साथ इसका मदद से आपको खोलना चाहिए था। So what happens is our life is that only. This is a manual, or as it's called Bible. Just to listen to the manual and to lead our life, we are sure to reach our destination. तो हमारा जो बाइबल है, हमारी जिंदगी भी बिल्कुल ऐसा ही है। बाइबल जो है इसका मैनुअल है या निर्देश पत्र है, बस इसको आप पढ़िए, इसके अनुसार चलिए, आप स्वर्ग पहुंच जाएंगे। That's only 10 commandments he has given, only 10 commandments. इसीलिए प्रभु ने जो है सिर्फ 10 आदेश दिए हैं या 10 नियम दिए हैं। And the New Testament only one law, love one another, love God. That's all. और नए विधान में तो एक ही नियम दिया है कि आप ईश्वर से प्यार करें, एक दूसरे से प्यार करें। If you violate this law, you are breaking the bulb, which is costly. अगर आप इस नियम को तोड़ रहे हैं तो फिर आप असल में उस बल्ब को फोड़ रहे हैं जो बहुत महंगा है। After that, we will cry and say, "Ayo, what happened to me? What's the problem in my life? What is trouble?" Nothing. You have opened the bulb with your naked hand. You didn't follow the direction. तो फिर बाद में आप ऐसे कहते हैं कि मेरे जिंदगी साथ ये कैसा हो गया, क्या हो गया, रोना धोना लगा रहता है। असल में तो आपने अपने नग्न हाथों से वो बल्ब निकाल दिया था। So, repair house is called church. Workshop is called church. Immediately go to church and confess your sin and repair the bulb and put it back in the right place. तो अगर आपको अपनी जिंदगी दुरुस्त करनी है, दुरुस्ती करने वाला जो घर है या कार्यशाला है, उसको हम कलीसिया या चर्च या गिरजाघर कहते हैं, तो तुरंत ही गिरजा में जाइए, पापों की आप कबूली कीजिए, प्रायश्चित कीजिए और अपनी दुरुस्ती करवाइए। Again, you can repair and use your instrument for good purposes. तो आप अपनी दुरुस्ती करवाइए और अपने जिंदगी का अच्छे काम के लिए इस्तेमाल कीजिए। Praise the Lord. हालेलुया, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। How are you all? Are you tired? क्या आप सब लोग कैसे हैं, थक गए हैं क्या? So I'll make a small prayer now. अब हम आपके लिए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। Today, I was from morning around 4:30. I'm out of my room, and until now, I did not go back my room. Full time was work, but I'm not tired. मैं सुबह 4:30 बजे सुबह उठकर मेरे कमरे से बाहर निकला हूँ, अभी तक अपने कमरा पहुंचा नहीं हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल थका हुआ नहीं हूँ। I was celebrating mass from 7:30 to 12 o'clock, one stretch, and then came back and started video recording for another 1.5 hours, and then leading the prayers another 2 hours. Now coming to the end, and Father said, "Can you give a talk now?" I said, "Father, can I give a talk now?" "Okay, no problem. Give me the topic." I said, "Whatever topic you said." "Okay." I said about this one little hair of your head will not fall without the knowledge of my Father. तो फिर मैं सुबह से मीसा बलिदान वगैरह मनाने गया, 7:30 से 12 बजे तक वो चल रहा था एक साथ। उसके बाद आया, उसके बाद कुछ